Uh, First of all, thank you. Thanks to the audience that the show is getting this kind of love. The way people have received it is very, very overwhelming. Secondly, talking about my character, I think Aditya, a very young lad with Gen Z की भाषा में अगर कहें तो is a very young character that I played on screen. And the most interesting thing was that this role came to me after after depicting a historical character on screen, which was in Punyashlok Ahilyabai. The character was Khandirao Holkar. तो रियल लाइफ हिस्टोरिकल कैरेक्टर एक मराठा वॉरियर प्ले करने के बाद एकदम एक जेनजी वाले जोन में स्टेप इन करना वाज अ वेरी गुड शिफ्ट, द काइंड ऑफ शिफ्ट दैट एज एन एक्टर आई रियली लुक फॉरवर्ड टू. तो आई थिंक चैलेंज नहीं था, बहुत इंटरेस्टिंग था कि किसी भी एक्टर के लिए आई थिंक स्क्रीन एज वापस कम करने का मौका मिलना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है. तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी. कहाँ क्लिष्ट हिंदी में बात करने से लेकर यहाँ एकदम टेक सैवी यंग आदित्य वाला कैरेक्टर, तो दैट वाज अ लॉट ऑफ फन. I think more than the genre, what really genuinely matters is the quality of the story that you're a part of. फिर चाहे मीडियम कोई भी हो, अगर अच्छी कहानी है तो वो हिस्टोरिकल में ही मजा आएगा करने में, और चाहे वो मॉडर्न में, दोनों का अपना चार्म है. लेकिन हिस्टोरिकल की बात करें तो हाँ, तो वहाँ वो वर्ल्ड क्रिएट करने में जो एलिमेंट्स लगते हैं, बिकॉज इट्स एन ऑडियो विजुअल मीडियम, तो वो एक अलग चैलेंज होता है ऑफ कोर्स. और बट अदरवाइज आई थिंक बोथ आर इक्वली गुड इन देयर ओन प्लेसेस. I think the only thing that is common between the both of them is exactly the thing which sets them apart, and that I think is the set of values with which they come from, because they belong to the same family, they have the same set of parents, that they've had the same upbringing as children, and that is the groundedness that they have, how down to earth they are as human beings, how sincere they are as artists, because they have seen their father साहब मिस्टर श्याम कौशल जी, उन्होंने वो जो मेहनत और जो ईमानदारी अपने काम के प्रति देखी है, वो रिफ्लेक्ट करती है उनके अपने कंडक्ट में, एज एक्टर्स, एज पीपल ऑल्सो. तो वो आई थिंक दैट ऑलवेज विंस माई हार्ट, यू नो, दैट काइंडनेस एंड दैट genuinity with which they work as two individuals. I think that is the most like that's the common thing between the two of them, and I think that is exactly the thing that sets them apart from quite a lot of people. The experience of working with them was genuinely very, very enriching, and it taught me a lot. First of all, yes, Rajiv Bhai is a very, very reserved guy, but in my case, I think बहुत अलग तरीके से मैंने अप्रोच किया जब पहली बार मुझे पता लगा कि मैं उनके साथ उनका छोटा भाई प्ले करने वाला हूँ एक सीरीज में. एंड आई हर्ड स्टोरीज जस्ट लाइक यू ऑल, आई हैड ऑल्सो हर्ड स्टोरीज ऑफ हिम बीइंग वेरी शाय, वेरी वेरी टू हिमसेल्फ. तो मैंने सोच लिया कि यार एक काम करते हैं, अगर गौरव राजीव खंडेलवाल से मिलेगा तो एक अलग केमिस्ट्री होगी. सो आई मेट हिम लाइक माई ओन कैरेक्टर आदित्य, और मैं रवि के किरदार से मिला जाके, और सीधा मैंने, आई रिमेंबर द फर्स्ट मीटिंग, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. आई जस्ट वेंट स्ट्रेट अप टू हिम एंड आई हग्ड हिम, एंड हमारे फोटोशूट के दौरान एज ब्रदर्स आई जस्ट गिव अ किस ऑन हिज चीक, to which he was quite taken aback कि अरे ये तो कभी नहीं हुआ मेरे साथ ऐसा. तो I think that start was a very organic start to our on screen and off screen relationship. तो वो बहुत इंटरेस्टिंग था. सई is again, she comes from a very very great body of work in the Marathi industry, and now especially pan India. So बहुत कुछ सीखा यार मैंने उनसे. I was the youngest on set and even in the story. So there was a lot of love and warmth with which we worked with each other. So it was a very beautiful experience. Well, the demanding of the role totally depends on the type of role, because even a modern character can be a very complex, layered character, and even the historical character. So I think the complexity of the role totally depends on what the character is. But talking about the challenge, yes, of course, with the historical, the other things like heavy costumes and some added skills that you need to have as an actor. Like for example, the one that I did, Ahilya Bai, उसमें मुझे I had to learn horse riding, I had to learn sword fighting, I had to learn fist fighting. There was a lot of action involved, which can also, by the way, be a case in a modern character. But
अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इन मॉडर्न एंड हिस्टोरिकल, तो आई थिंक हिस्टोरिकल मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला नया, तो बहुत चैलेंजिंग था, बहुत अच्छा था, मजा आया। एंड आई थिंक मॉडर्न कैरेक्टर्स का अपना अलग चार्म होता है, अपनी अलग ईज होती है। सो दोनों अपनी जगह है, बट मेरे लिए in fact, I really want to say this that I've been very blessed enough to have these so varied opportunities जहाँ 2 साल के अंदर मैं एक तरफ एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर निभा रहा हूँ, जहाँ मुझे इतनी सारी एडेड स्किल्स जो हैं उन पर काम करना पड़ा है, और दूसरी तरफ मैंने एक बिल्कुल ही अलग जेंजी जो है कैरेक्टर प्ले किया है। सो आई थिंक बोथ वर वेरी वेरी एनरिचिंग इन देयर ओन रिस्पेक्टिव प्लेसेस। यार आई जेन्युइनली फील आई हैव अ लॉट टू ऑफर। मैं अपने काफ़ी सारी जो सेगमेंट्स हैं एज एन एक्टर उन पे काम किया। आई रियली वांट टू एक्सप्लोर एक्शन मोर। आई एम डूइंग अ कॉमेडी, जो मेरा करंट शो चल रहा है जियो हॉटस्टार और कलर्स पर, ज़्यादा मत उड़। आई थिंक मैंने थिएटर में काफ़ी कॉमेडी की है, बट स्क्रीन पर इन अ वेरी डिफरेंट कॉमिकल अवतार में पहली बार मुझे लोग देखेंगे। तो एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर कर लिया है, जेन जी कर लिया है, बड़े बड़े कैरेक्टर्स की बात करूँ तो, और एक कॉमेडी कर लिया है। तो आई थिंक इसके अलावा मुझे रोमांटिक रोल्स भी एक्सप्लोर करने हैं यार, रोमांटिक एक्शन, तो इन सब का एक अच्छा सा मिश्रण मैं ढूंढूंगा। No, I don't think that's true at all, because it has got nothing to do with any project being a TV show or it being a theatrical film. Because I mean, we've all seen some great budget films, theatrical releases also fall, flat and not work as per the expectations. Or and also talking about my own show, Punyashlo Kahilya Bai, and some other shows all as well. तो एक फिल्म आई थिंक स्क्रीन पर कितनी अच्छी हो तो वो महीना 2 महीना, 5 वीक्स 6 वीक्स 7 वीक्स चल जाती है फिल्म, तो वो एक बहुत बड़ी सक्सेस होती है, बिल्कुल होती है। लेकिन वहीं अगर टीवी की बात करें तो अच्छी स्टोरीज अगर हैं, तो मैं अपने शो की बात करूँ, वो 3.5 साल सोनी पर चला, तो हफ्ते में 5 दिन। तो कोई भी शो, कोई भी स्टोरी अगर उसमें दम ना हो, तो कोई भी ऑडियंस इतने लंबे समय तक उसे प्यार नहीं देगी। तो आई थिंक इट इज नॉट अबाउट व्हाट मीडियम की जो प्यार फिल्मों को मिलता है वो टीवी पे नहीं मिलता। आई थिंक इट्स पीपल नो व्हाट गुड कंटेंट इज, फिर चाहे वो टीवी पर हो, ओटीटी पर हो, या फिल्मों में हो। तो आई थिंक इट ऑल कम्स डाउन टू हाउ गुड द प्रोजेक्ट और द फिल्म इज। पहले कई जगह कहा है कि ये सवाल पूछना बिल्कुल वही है जैसे कि आप किसी क्रिकेटर को पूछें कि वर्ल्ड कप खेलना बेटर है या आईपीएल। दोनों की अपनी अपनी जगह है, दोनों की अपनी अपनी खूबसूरती है। और फिल्म्स, जैसे कि मैं कहता हूँ, एक एक्सपीरियंस है। सिनेमा जैसे हम बोलते हैं इंडिया में, खासकर सिनेमा इज एन एक्सपीरियंस। तो वहाँ जो ग्रैंडयोर आपको मिलता है, जो एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग ऑन दैट बिग स्क्रीन, that hit is different when you sit and watch a movie with 150 200 people, all of them experiencing the same emotion at the same time. वो एक that power to touch people at the same time and move them is beautiful. Talking about OTT में क्या फर्क है, वो ये है कि फिल्मों में कोई 2 3 या बहुत हुआ तो 4 से 5 किरदार का ensemble आपको दिखेगा, और 2 ढाई 3 घंटे की फिल्म में कितना ही होगा कि आप सारे कैरेक्टर्स की लाइफ को इन डेप्थ छू पाओगे on a writing level. When it comes to OTT, now we have good series with 8 episodes, 10 episodes, 40 minutes each, 1 hour each episode. तो उसमें क्या होता है कि हर कैरेक्टर की स्टोरी में डीप जाने का आपको मौका मिलता है। इन रिटर्न उस एक्टर को उस शो में अपने ज़्यादा कलर्स, अपनी रेंज, अपनी लेयर्स एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है। तो यस, वो मैं कहूँगा कि OTT में आप एक स्टोरी में कई किरदारों को क्लोजली जान पाते हैं, फिल्म में आप एक लिमिटेड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन वो दोनों एक्सपीरियंसेस बहुत अलग हैं। OTT हम लोग फ़ोन पे भी देख लेते हैं, चलते फिरते देख लेते हैं, है ना, और लैपटॉप पे देख लेते हैं, टीवी पे देख लेते हैं, पॉज कर देते हैं, वो एक अलग एक्सपीरियंस है। लेकिन फिल्म का जो एक साथ बैठ के 2.5 घंटे देखना एक बड़े स्क्रीन पर, आई थिंक दैट इज इररिप्लेसेबल।